University of Sargodha. And the third assignment belongs to University of Sargodha as well as University of Punjab, which is a dramatic irony. As we have already discussed about dramatic irony. Dramatic irony means when audience know something what is happening on the stage, but characters do not know what is happening with them. This is what known as dramatic irony. There are various kind of irony I discussed in detail, and I think I have uploaded a lecture related to dramatic irony, situation irony, and then there is a circumstantial irony. There are different kind of irony, but today we are going to discuss about dramatic irony. Dramatic irony occurs when the characters who are performing on the stage do not know what is happening, but the audience, they are sitting in front of them and they are watching whatever happens, and they know Iago is planning and plotting against something, and Cassio, and what is going between Cassio and Bianca, what is going on between Emilia and Desdemona, what is going between the Montano and the Othello. So everything which is being played on the stage, audience know, but character do not know. So this situation, whenever such kind of situation occur, we may call it dramatic irony. And like that irony, we have found in abundance, especially in the work of Sophocles. Sophocles, he has introduced such kind of concept, that he has given a lot of dramatic irony. So talk about Oedipus Rex. We have found in Oedipus Rex, character, they are being performed on the stage. They do not know what is happening. Whether Jocasta is the mother of Oedipus, or he is the son of Leos, or like that, he does not know. But the audience, like us, we are in front of him, we are watching what is happening on the stage. We know that Jocasta was mother of the Oedipus. Oedipus was told that he'll be killing his father and marrying his mother, and we know everything, but character do not know. हमने देखा कि करैक्टर को नहीं पता, हम बतौर ऑडियंस जो उसके सामने बैठे थे, हम सब कुछ जानते थे. दैट वाज ड्रामेटिक आयरनी. और सोफोक्लिस जो था वो इसका मास्टर था, वो बड़ा एक्सपर्ट था ड्रामेटिक आयरनी को यूज़ करने में. सो लेट्स सी. पहले हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको इससे डिटेल बताऊँ. हाँ जी, हमारी स्टूडेंट हैं एक मरियम और सबा, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, और इन्होंने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना है. डियर स्टूडेंट, इन टुडेज टास्क यू पीपल विल लर्न रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, द टेम्पेस्ट, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, एंड देयर इज दिस टेक्स्ट reference to the context, and then we'll see the Tempest allegorical story and the dramatic irony in the Othello. So let's see. What is reference to the context? Anybody amongst you want to share idea? What is reference to the context? If you are asked to write reference to the context by giving certain extract, अगर आपको कोई एक्सट्रैक्ट दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखें, तो आप क्या आपके मन में आता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यही चीज़ नहीं सिखाई जाती कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या होता है. व्हाट इज रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट? देखिए, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है, पहले तो आपने लिखना ही है कि आपने वो लंबा चौड़ा नहीं लिखना कि ये हाईली चेरिश्ड और एक्सीलेंट लाइंस, ये वी डोंट नीड. हम लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले इडिपस रेक्स या टेम्पस या अथेलो, रिटन बाय शेक्सपियर. शेक्सपियर को डबल कोट्स नहीं करना, सिर्फ आपने जो नाम है उसको, उस प्ले के नाम को डबल कोट करना है. ठीक है. दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर प्ले अथेलो बाय शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर. तो जब भी आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं कि एक शॉर्ट सी समरी हम देते हैं, सुन ले, गौर से सुने. हम एक शॉर्ट सी कॉन्टेक्स्ट में हमेशा क्या करना होता है, आपने एक शॉर्ट सी समरी देनी होती है. और उसके साथ साथ हमने एक काम और करना होता है
कि उस शॉर्ट समरी को हमने रिलेट करना है एंड रिलेट दिस शॉर्ट समरी विद गिवन लाइन। आप जब भी प्ले आप पढ़ते हैं तो आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताई जाती है। हाँ जी, एक बच्चा पैदा होगा, वो अपनी माँ से शादी करेगा, फादर को कत्ल करेगा। ये इडिपस रेक्स की मेन स्टोरी है ना, मेन प्लॉट है इसका। चले जी अब अथेलो में आ। एक अयागो है, अयागो जो है वो जेलसी की वजह से किससे जेलस है? अथेलो से, कैसियो से और डेस्टिमोना से, यानी इन तीनों से वो जेलस है। एंड आउट ऑफ जेलसी ही वांट्स टू टेक रिवेंज। In a way to take revenge, he cheated Desdemona, Emilia, Cassio, Michael Cassio, Rodrigo and Othello। इन सबको वो चीट करता है, ठीक है। अल्टीमेटली वो एक जाल बुनता है और उस जाल में वो खुद ही फंस जाता है, यानी वो दूसरों के लिए जो गड़ा खोलता है वो अल्टीमेटली उसमें खुद फंस जाता है, यानी ये उसकी मेन स्टोरी है। तो हम ये कहेंगे कि पहले हम शॉर्ट सी स्टोरी बनाएंगे। इन दिस प्ले दिस करेक्टर डेस्डेमोना हु वाज अ वाइफ ऑफ अथेलो एंड शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी बोल्ड एंड फेयर लेडी, बट आउट ऑफ जेलसी अथेलो हु वाज being misguided by the Iago, and by following the advices or piece of advices of Iago, he started doubting on his chasteful wife। ये इतनी सी बात है, उसको फिर उन लाइन से आपने उसको रिलेट कर देना है जो लाइन दी गई है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है टू टेल द शॉर्ट समरी। आपने शॉर्ट स्टोरी बतानी है और उसको लिंक किसके साथ करना है? लाइन के साथ। एंड मैच द लिंक ऑफ द गिवन लाइन, फिर उसको मैच करना है जो गिवन लाइंस आपको दी गई हैं, ठीक है, उसके साथ एक शॉर्ट सी स्टोरी बनाएं। शॉर्ट सी स्टोरी को आपने फिर क्या करना है? उसको लिंक करना है। शॉर्ट स्टोरी जो आप बनाएंगे उनको लिंक करना है उस लाइन के साथ। वो लाइन का जिक्र ज़रूर आना चाहिए ताकि पता चले रिलेट के, ताकि एग्जामिनर जो है, जो चेकर है, पेपर चेकर है, उसको अंदाज़ा हो जाए कि इसने पढ़ा है। सो दैट द पेपर चेकर कम टू नो द स्टूडेंट हैज़ रीड ऑल द ड्रामा। और कॉन्टेक्स्ट जो है वो खुद लिखना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना चाहिए। कोशिश करें इसको खुद लिखें, शॉर्ट सी समरी याद कर लें, खुद लिख लिख के प्रैक्टिस करें, 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, ये हो जाएगी। आपने शॉर्ट सी समरी इसकी बनानी है, छोटी सी। आप छोटी समरी तो आपको पता ही है, आप किंग लियर की बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे? हाँ जी, एक बादशाह था, उसकी 3 बेटियां थी। 3 बेटियों से उसने पूछा, ही आस्क्ड दैट हाउ मच दो लव मी, एंड ऑल द गर्ल्स एक्सेप्ट कॉर्डेलिया दे से दैट वी लव यू सो मच, स्टार, सन एंड एवरीथिंग, बट one daughter, Cordelia, she says that I love you so much, but whenever I will be married, my half of the love will be transferred to my husband। तो उसने कहा सोच लो, उसने कहा सोच लिया, उसने कहा नथिंग, उसने कहा नथिंग विल गेट नथिंग। यानी मैं एक आपको जैसे मिसाल दे रहा हूँ कि आपने उसका एक शॉर्ट सा एक प्लॉट बनाना है, उसका क्या है, उसका इन जनरल, और उसको रिलेट करना है उस लाइन के अंदर। इसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। अब ये आप बुक्स पढ़ लें, आपको किसी बुक्स में ये चीज़ नहीं बताई गई होगी, ठीक है। आपने एक शॉर्ट सी समरी बनानी है और उन गिवन लाइन के साथ उसका लिंक देना है कि भाई ये इस जगह पे ये ऐसे बात हुई थी, और बस एक लिंक देना है। और नीचे आपने फिर जब एक्सप्लेनेशन देनी है उसमें उन लाइन के साथ कौन बोल रहा था, बैकग्राउंड क्या था, सेटिंग क्या थी, कहाँ पे डिस्कशन हो रही, कौन किससे बोल रहा था, कौन सा सीन था, ये सारा कुछ बताना होता है एक्सप्लेनेशन में। होप यू गॉट द पॉइंट। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे एक आया हुआ है, एक मैंने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिया है। अब मैंने ये फैसला किया है कि मैं आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है मेन करवाऊंगा। शी लव्ड मी फॉर द डेंजर आई हैड पास्ट। उसने मुझसे क्यों मोहब्बत की? कि जो मैंने डेंजर इस कंट्री के लिए लिए, जो मैं पेट्रोटिज्म के जज्बे से लड़ता रहा, जो मैंने कैंपेन की, जो मैंने बहुत बड़ी मुहिमात में हिस्सा लिया, जंगी मुहिमात, और इस वेनिस सिटी के लिए लड़ता रहा, इस कंट्री के लिए लड़ा, और बड़ी पेट्रोटिज्म हिब्बुल वतनी से लड़ा, और ये सारी चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया और उसके अंदर सिंपथी डाल दी, और फिर वो सिंपथी मेरे प्यार में बदल गई, और देन वी लव ईच अदर, एंड दिस इज द मैजिक आई हैव अप्लाइड ऑन डेस्डेमोना। ये किससे बात हो रही है? कोई मुझे बताएगा कि ये जो है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये कहाँ से लिया गया है?
किससे लिया गया है, कौन सा था एक्ट, कौन सा है? एक्ट वन। वेरी गुड, एक्ट वन। एक्ट वन है। और बात कौन किससे कर रहा है? यहाँ पे खड़ा है ड्यूक। ठीक है, ये ड्यूक भी यहाँ पे है। ओथेलो बात कर रहा है डेस्टिमोना के बारे में। अथेलो बात कर रहा है, डेस्डेमोना के बारे में बात हो रही है, ये एक्सप्लेनेशन में हम बताएंगे। डेस्डेमोना के बारे में बात हो रही है, सामने खड़े हैं सारे, और वो उनको अपना क्या बता रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है कि भाई मैंने यही एक मैजिक था मेरे पास, मेरी सारी उम्र तो गुजरी किस में है, जंगों में गुजरी। आप वो सारा कॉन्टेक्स्ट में बना के दिखाएं कि शी लव्ड मी फॉर द डेंजर आई हैड पास्ट। उसने मुझसे प्यार किया जो मैंने बड़ी बड़ी कॉम्पेन्स और ये लड़ाइयाँ और ये फतूहात और ये डेंजरस जो अंडरटुक किया मैंने, बड़े बड़े एक्ट्स मैंने किए। किसके लिए? इस कंट्री कॉम्पेन, इसके लिए जो कॉम्पेन और जंगी फतूहात मेरी इनसे वो क्या हुई, वो इनसे मुतासर हुई। एंड आई लव हर दैट शी डिड पिटी देम। और मैं कहता है एंड आई लव्ड हर, और मैं इसलिए उससे प्यार करता था। क्यों करता था? शी डिड पिटी, कि उन्होंने मेरी बातों को सुना और हमारा इंटरेक्शन बढ़ा और उसने उस पर पिटी जार, कि उससे मुझ पर तरस आ गया कि मैं कहाँ लड़ता रहा हूँ इस कंट्री के लिए। दिस इज द ओनली विच क्राफ्ट आई हैव यूज। यही एक विच क्राफ्ट है ड्यूक मास्टर के, मैंने उसके ऊपर मेरे आका मैंने यूज़ किया। तो इससे वो बड़ा खुश हुआ कि जाएं जी, आप लोग आज़ाद हैं, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, आपने इसे शादी की है, वो इन्फ्लुएंस्ड हुई आपकी पेट्रोटिज्म से, और आप जाएं। साइप्रस में एक जंग जो है उसका ख़तरा है और ड्रग्स जो हैं वो आ रहे हैं। आप इस ये डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन में दे सकते हैं। रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, दिस एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे आप लाइंस भी कह सकते हैं। दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन चूजन फ्रॉम द प्ले अथेलो बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक हो गया। बरबेंशु, मैं इसके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है मैं खुद बना के भी आपको सेंड और भी कर दूंगा। ये जस्ट मैंने एक मॉडल आपको दिया, आप अपने माइंड में रखें कि मैंने आई एम जस्ट गिविंग यू अ मॉडल एट द मोमेंट। तो बरबेंशु एंड अथेलोस आर बिफोर द ड्यूक। ड्यूक के सामने बरबेंशु है, अथेलो है, और दोनों इंटरप्ट। वो कहता है कि इसने, हमने पढ़ा था ना, देखिए लाइन टू लाइन टेक्स्ट का इकरा, ये लाइन टू लाइन टेक्स्ट का क्या नाम है हमारी स्टूडेंट का, मरियम। लाइन टू लाइन टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा फायदा है, कोई इसकी इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकता कि लाइन टू लाइन टेक्स्ट जो नहीं पढ़ाता टीचर, मैं कहता हूँ कि बहुत गलत करता है, स्टूडेंट के साथ जुल्म है। लेकिन उसका एक ख़ास टाइम है, हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। मैंने आज ओवरऑल जब इसको एनालाइज किया तो मैंने कहा कि फिर हम ये एक ही पढ़ते रहेंगे। एनी हो, देखेंगे टाइम, अगर हमारे पास इतना हुआ तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करवा दूंगा ताकि आपका गुजारा तो हो जाए। बरबेंशु और अथेलो जो हैं वो किसके सामने है? ड्यूक के सामने है। और सेनेटर बरबेंशु है वो ब्लेम लगाता है। क्या ब्लेम है? कि इसने मेरी बेटी के ऊपर विचक्राफ्ट इस्तेमाल किया है और बहुत सारी कुछ इस तरह की इसने उससे कुछ चीज़ें खिलाई हैं जिसकी वजह से मेरी बेटी जो है अपने हवास खो बैठी है। इस ऐसे बंदे को जिसको देखने को भी दिल नहीं करता, उससे शादी कौन करेगा? द ड्यूक आस्क अथेलो टू टॉक ऑन द साइड, ऑन हिज साइड। अथेलो रिप्लाइज दैट, उसने कहा कि भाई तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? तो उसने कहा, अथेलो रिप्लाइज दैट ही इज अ सोल्जर हु हैज स्पेंट मोस्ट हिज लाइफ इन द बैटल ग्राउंड। उसने सारा अपना ज़्यादा टाइम बैटल ग्राउंड में गुजारा है। एंड डज नॉट नो द मैजिक, और ब्लैक मैजिक वो कहाँ से जान गया? ही स्टेट दैट डेस्डेमोना in fall in love with him because she was greatly stimulated and influenced by the story of his adventures। जो उसने एडवेंचर उसको बताई अपनी, वो उन सब से वो मुतासर हुई है, तो ये इसलिए उसने उसके साथ शादी की। ये तो कॉन्टेक्स्ट हो गया, एक्सप्लेनेशन। दीज लाइन आर एक्सट्रैक्टेड, ये एक मॉडल है, इसे हमेशा अपने माइंड में रखें और फॉलो करें जब वहाँ पे लिखने लगें। हाँ जी, दीज लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्ले अथेलो एक्ट 1, यानी एक्ट 1 से लिया गया। तो मैंने यहाँ पे बताया कि ये एक्ट 1 से है, ठीक है। शो द मास्टरीज एंड कमांड ऑफ द पोएट ऑफ द लैंग्वेज, द ग्रीन आइड monster causes much woes, and woes give rise to the angers, and anger to malice, and malice to woo against the whole circle to be completed, and the angry Barbenshu stress the Moor is the devil who trapped the
ट्रैप हिज डॉटर, जिसने उसकी डॉटर को क्या किया, एक डिसेंट डॉटर को उसने ट्रैप कर लिया है। इन द लाइन अंडर रेफरेंस इसमें क्या हो रहा है, अथेलो इज टॉकिंग द ड्यूक एंड सैन। अब यहाँ पे देखें जो लाइन है वहाँ पे हमने करेक्टर बताने हैं कि ड्यूक था, ठीक है, और क्या है, ब्रबेंशियो है, अथेलो है, इनकी बात चल रही है। सेटिंग क्या है, ड्यूल का महल है, वहाँ पे बात हो रही है। तो वो सारा कुछ आपने बैकग्राउंड भी बताना है। ये होती है एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे हम इसको अब जितना मर्जी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हमने लाइन टू लाइन टेक्स्ट इसको पढ़ा है, ठीक है। Senator, he said that the Desdemona fell in love because which he learned he had passed through lot of adventurous work, and on his side because he sympathized with the story of his life. Othello is in his defense saying that this is all the magic he has used, and all become satisfied with his justification. सारे satisfied हो जाते हैं of the danger loved एंड द रिलेशन विद द स्पीकर्स एंड स्टोरी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुन के सारे जो हैं वो मुतासर होते हैं, और वो थैलो जो है वो जीत लेता है ये डिस्कोर्स कन्वर्सेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शेक्सपियर वर्क एज एलिगरी। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रायर टू डिस्कस दिस। आई वांट दैट आई शुड डिस्कस सम मोर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। थोड़ा सा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक और देख लें। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है, हाँ, ये एक्ट 2 सीन 3 से लाइन ली गई हैं। मैं ज़रा पीछे ले जाऊँ स्लाइड्स को, हमें थोड़ा सा मिल जाए प्लेस। लाइन ली गई हैं एक्ट 2 सीन 3। अगर आपके पास बुक है तो ये निकाल लें, एक्ट 2 सीन 3। एक्ट 2 का जो सीन 3 है उसकी लाइन है, ये नोट कर लें, 111 से 114। इम्पोर्टेंट लाइन है, आई हुई काफ़ी दफ़ा। इसमें आप देखें, इसमें वो कहता है कि ही इज अ सोल्जर फिट टू स्टैंड बाय सीजर। अब कौन किससे बात कर रहा है ये आपने मुझे कोशिश करना है इसको बताने की, ठीक है। कौन किससे बात कर रहा है ये आपने कोशिश करनी है मुझे बताने की। लेट्स ट्राई। यहाँ पे आ जाते हैं, एक्ट 2 सीन 3। मैं लाइनें आपके सामने लिखने लगा हूँ, ये इसके ऊपर निशान लगा लें, मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंशाल्लाह आएंगी ये। यागो बात कर रहा है किसके, मोंटेनो के साथ। यागो किससे बात कर रहा है मैं पहले बता देता हूँ, मोंटेनो के साथ। जो मोंटेनो कौन था, गवर्नर था। अयागो मोंटेनो से बात कर रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, अथेलो के बारे में। अथेलो को बेवकूफ़ ज़ाहिर कर रहा है, और कैसियो को बता रहा है कि बड़ा वफादार तो है लेकिन ये धोखा देगा। इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, चूँकि इसने शराब पी है और किस तरह ड्रामा किया है। अच्छा सोल्जर तो ये है, लेकिन साथ ही उसने उसको क्या कर दिया, अपनी भड़ास भी निकाल ली कि मैं लेफ्टिनेंट मैंने बनना था तो उसे बनाया है। तो ये एक एकोनेक्स है। एकोनेक्स का मतलब लिखें, इसके अंदर यूज़ हुआ है EQUINOX।
डे और नाइट, इसका मतलब होता है एकोनेक्स का मतलब होता है डे एंड नाइट, दोनों चीज़। डे एंड नाइट इक्वल जब सिचुएशन होती है कि चीज़ जो है वो सो हो, किसी बंदे के अंदर दोनों यानी ईवल भी हो और गुड भी हो, उसको क्या कहते हैं? अगर वो दोनों बराबर बराबर उसका प्रोपोर्शन हो या इक्वल हो दोनों, तो उसे कहते हैं एकोनेकस। इकोनेकस 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 इसके अंदर यूज हुआ है। अगर आपके पास बुक है तो काइंडली एक्ट नंबर 2 सीन नंबर 3, आयागो बोल रहा है मिंटैनो से, उसे कह रहा है कि इस पे तबार तो कर लिया है लेकिन इसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद है, ये ईवल जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। आपने देख लिया अभी आपके सामने इसने क्या किया। ऐसे शख्स पे कहता है इतबार करना ठीक है? किसी दिन अथैलो को बहुत बड़ा धचका देगा ये। बात समझ आई? देखो मैं पढ़ता हूं। ही इज अ सोल्जर फिट टू स्टैंड बाय द सीजर। सोल्जर बहुत अच्छा है, ऐसा सोल्जर है कि जो एंशियंट टाइम में जो सीजर था उसके साथ जैसे चलने वाला कोई फिर जो सोल्जर था वो है, कहता फिट स्टैंड बाय सीजर। जो सीजर के साथ जो चलने वाला सोल्जर था बिल्कुल ऐसा सोल्जर है, बड़ा अच्छा सोल्जर है कहता। एंड गिव डायरेक्शंस, और कहता है इसी तरह ये जैसे फिट टू स्टैंड बाय द सीजर एंड गिव डायरेक्शन भी देता है, क्योंकि ये अच्छा फाइटर भी है, कैसियो लड़ता है, गाइड भी करता है और अथैलो के साथ ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन उसने कहा एंड डू सी हिज वॉइस एंड डू बट सी हिज वॉइस। अभी कहता देखो, अभी ज़रा कहता इसे देखो ये क्या कर रहा है, कैसे आवाज़ें निकाल रहा है। अब वो जो सिचुएशन में शराब पी हुई है तो उसे कह रहा है, आगे वो कहता है दिस इज हिज वर्च्यू जस्ट एकोनेकस। इकोनेकस का मतलब कि इसकी वर्च्यू कहता है ऐसे है कि ये डे भी है नाइट भी है, गुड भी है बैड भी है, दोनों ईवल गुड इसमें बराबर ही है, ये अच्छा भी है साथ बुरा भी है, इसके अंदर मेरिट और डीमेरिट्स भी हैं। एंड देयर वन लॉन्ग एज द अदर्स दिस इज पिटी ऑफ हिम। कहता है कि ऐसे शख्स के ऊपर एतबार करना, मैं कहता मुझे बहुत तरस आता है कि हमारा जो जर्नैल है थैलो ऐसे शख्स के ऊपर एतबार करता है, किसी दिन इससे बहुत बड़ा धोखा खाएगा। तो वो क्या कह रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात यहाँ पे हो रही है, फिर इसको याद कर लें। ही इज अ सोल्जर फिट टू स्टैंड बाय सीजर एंड गिव डायरेक्शन भी देता है, अच्छा सोल्जर है। एंड डू बट सी हिज वॉइस, लेकिन कहता है इसकी बुराइयां भी ज़रा देखो, इसके अंदर बुराइयां भी हैं। वॉइस का मतलब होता है बुराई, ईवल, ये दूसरा वॉइस नहीं है। दिस इज द वर्च्यू इज जस्ट इकोनेकस, इसकी वर्च्यू ऐसे ही है कि यानी जैसे डे नाइट इक्वल हो, यानी गुड बैड ईवल गुड बराबर बराबर। आगे कहता है कि द वन एज लॉन्ग एज अदर्स, यानी जितनी एक अच्छा है, जितना अच्छा है उतना ये बुरा भी है। अब जितनी इसमें गुड यानी सोल्जरशिप की अगर अच्छी क्वालिटी है, साथ इसमें बुराई भी है, शराब पीता है, लड़ता है, मारता है, गालियाँ देता है, इस तरह के काम भी हैं। जिस पिटी ऑफ हिम, किसी दिन हमारा जो है अथैलो जो हमारा जर्नैल है बहुत बड़ी खता खाएगा, इससे बहुत बड़ा धोखा करेगा ये। आगे जी इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले, कौन सा प्ले? अथैलो, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। लिखेंगे कि आयागो जो हु नोज दैट द कैसियो इज अ वीक हैड फॉर ड्रिंक्स इंटेंशनली गेट हिम ड्रंक, उससे खुद इंटेंशनली ड्रंक करता है और फिर उसको क्या कहता है? एंड ही टेल्स, किसको कहता है? ही टेल्स मेंटेनो दैट दिस पर्सन इज गुड एज वेल एज बैड। इफ ही हैज अ गुड स्किल ऑफ सोल्जरशिप, at the same time he has a bad skill of abusing, drinking wine and like these activity। ये हम उसको यहाँ बताएंगे। नीचे फिर जो मैंने आपको बताया बताएंगे। बात किसके साथ हो रही है? मेंटेनो के साथ बात हो रही है, आयागो बात कर रहा है, ठीक है। बात कैसियो और किसके साथ हो रही है? प्लस किसके साथ हो रही है? कैसियो और अथैलो की, इन दोनों की बातें हो रही है और सारी सिचुएशन बयान कर देना कि इस जगह पे जैसे शराब पिलाई गई थी और वो अपना हवास खो बैठा और वो उसे अब साबित कर रहा है बुरा,
तो ये भी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है आप कर लेंगे। आगे देखें, एक और मैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपको बताता हूँ। मैं इसके स्नैपशॉट भी इंशाल्लाह भेज दूंगा आपको। एक्ट 3 सीन 3 से लिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। एक्ट 3 सीन 3। लिख लें, लाइन नंबर है 272, 200। स्नैपशॉट ले लिया करें, ऐसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मोबाइल से स्नैपशॉट ले लिया करें। मरियम समझ आ रही है? कुरातुल ऐन समझ आ रही है आप? हाँ जी। अब ये मैंने बताया एक्ट नंबर 3 है, सीन नंबर 3 है और इसकी 272 लाइन है। ठीक, ये ठीक नहीं लिखा गया, 272 से 277, यानी 272 से लेके 277 तक इसका स्नैपशॉट ले लें। अब ये लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है। ओ कर्स ऑफ मैरिज, कौन किससे बात कर रहा है? अथैलो अपनी स्लोलकी में बात कर रहा है, अथैलो खुद से बात कर रहा है। ए फीमेल, तुम कितनी डेलिकेट हो, कितनी डेलिकेट क्रिएचर है। हम इस डेलिकेट क्रिएचर के लिए अपना सब कुछ वक्फ कर देते हैं, लेकिन ये डेलिकेट क्रिएचर जो है अपने दिल में और अपने सेक्सुअल सेटिएशन के लिए, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए किसको दिल में रखती है, ये कहता नहीं पता। हम